Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a racing car moving towards a cliff sounds its horn. The driver observes that the sound reflected from the cliff has a pitch 1 octave higher than the actual sound of the horn. If v is the velocity of sound, then the velocity of car is option first v by root 2, option 2 v by 2, option 3 v by 3, option 4 v by 4. So there are few things that we need to have clarity on. सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पिच जो होती है, पिच एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जो कि फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनल होती है, राइट। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वी कैन से कि उतना ही पिच ज़्यादा होता है। बेसिकली व्हेन वी ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड, सो एक कैरेक्टरिस्टिक है पिच जिसकी मदद से वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लेट्स से वी हैव सेम लाउडनेस एंड द साउंड इज प्लेड फ्रॉम द सेम इंस्ट्रूमेंट। अब हमें डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस क्या है। सो डिफरेंस विल बी देन कैलकुलेटेड और then decided using the factor of pitch. Pitch basically it is proportional to frequency. अगर frequency का difference आता है, so in that scenario we can say कि pitch can be considered as a factor or the characteristic of sound to distinguish between two sound. ठीक है। अब यहाँ पे जो situation है we can see pitch के बारे में तो हो गया, it is proportional to frequency, right? And also about the term octave के बारे में भी हम जान लेते हैं। Octave basically it is a musical term और वी कैन से इट इज रिलेटेड टू साउंड। सो बेसिकली ऑक्टेव में होता क्या है कि एक की फ्रीक्वेंसी, लेट्स से अगर हम कहें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इज ऑक्टेव ऑफ अदर, और फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इज ऑक्टेव, या फिर हम ऐसा कहें कि वन इज ऑक्टेव ऑफ सेकेंड, सो वन इज हैविंग फ्रीक्वेंसी डबल देन टू। सो इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन इज के वन इज ऑक्टेव ऑफ सेकेंड, सो वन इज डबल ऑफ द सेकेंड, फ्रीक्वेंसी डबल होगी उसकी, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन, so also we need to understand whenever there is a relative motion between the source of sound and the observer, so जो frequency observer को सुनाई देती है that is not the actual frequency and it is known as the apparent frequency, and उसका जो expression आता है it is given by the formula v plus minus of v naught divided by v minus plus of vs into n. यहाँ पे we need to be clear with the terms. V is the speed of or the velocity of sound in air, and V naught is the velocity of observer, Vs is the velocity of source. And from this also we need to understand के numerator में positive sign, denominator में negative sign we will have to use when the source of sound and the observer are moving towards each other, or either of the one is moving towards the other. And in the numerator negative and denominator positive, so this will be the case when they are moving away from each other, or either of the one is moving away from the other. So these are the basic few understanding we must have regarding Doppler's effect. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ड्राइवर है हमारा, ठीक है ना, इट इज मूविंग अलोंग अ क्लिफ, ठीक है। क्लिफ मीन्स कोई माउंटेन जैसा कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसके अलोंग मूव हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट केस वी कैन से जो फ्रीक्वेंसी इट इज एमिटिंग सम साउंड, राइट। अब ये साउंड एमिट कर रहा है, ये यहाँ जाके साउंड टकरा के वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से, राइट। सो इन द फर्स्ट सिचुएशन हम क्या मान लेते हैं कि क्लिफ को हम ऑब्जर्वर मान लेते हैं एंड कार को हम सोर्स ऑफ साउंड मान लेते हैं। सो इन दैट सिनेरियो हम जो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे दैट कैन बी रिटन एज अपरेंट फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, यानी कि जो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी वॉल रिसीव करेगा दैट इज द मीनिंग। यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर माना है इसीलिए हम लिख रहे हैं कि n1 that will be equals to, since we can say observer is at rest, so we will be and the source is moving towards, so towards वाली condition में so we will write v plus observer तो rest पे है, so v तो 0 हो जाएगा, v plus 0 divide by v minus of vs, vs is the velocity of the source, that is हम velocity of car कह रहे हैं vc, ठीक है, into n जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो एमिट कर रहा होगा, राइट। अब ये फ्रीक्वेंसी इस सोर्स को मिल रही है और यही फ्रीक्वेंसी वो क्या करेगा, अब ये फ्रीक्वेंसी से वो रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। अब जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो अब ये क्लिफ जो है एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा जो कि स्टेशनरी है, एंड ड्राइवर इन द कार विल बिहेव एज इफ इट इज अ ऑब्जर्वर, ठीक है। सो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, दिस विल बी द कंडीशन, राइट। सो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी हम मान लेंगे n2, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से के ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स, अगेन टुवर्ड्स का केस आ रहा है,
Now observer is moving, so we will take v plus vc डिवाइडेड बाय v, क्योंकि सोर्स अब क्लिफ बन चुका है, सो क्लिफ इज एट रेस्ट, सो ये कंडीशन आ गई, राइट। एंड जो फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे आएगी वो आएगी n1। क्यों n1? बिकॉज यही फ्रीक्वेंसी तो इसने रिसीव की है, वही वो एमिट करेगा। सो जब ये फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा होगा सोर्स की तरह, सो n1 हमें लेना होगा, और इन दिस सिचुएशन वी कैन से v प्लस ऑफ vc अपॉन v इंटू n1 की वैल्यू हम डालेंगे v अपॉन v माइनस ऑफ vc एंड इंटू n, राइट। अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये जो n2 है ये हमें बोला गया है कि जब उसने सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर ने रिसीव की है, इट इज ऑक्टेव 1 ऑक्टेव हायर देन द एक्चुअल साउंड, यानी एक्चुअल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है या पिच है वो n है, तो ये 2n हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट द मीनिंग वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, ऑक्टेव का मतलब। सो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v भी कैंसिल हो जाएगा, सो जो रिजल्ट आएगा v इंटू 2 इंटू v माइनस ऑफ vc इज इक्वल्स टू v प्लस ऑफ vc। हमें vc की वैल्यू चाहिए, so we can say 2v minus 2vc will be equals to v plus vc, and in this situation हम क्या लिख सकते हैं, v will be equals to 3vc, यानी कि vc की जो वैल्यू आएगी that is velocity of car will comes out to be v by 3। so this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन 3 के साथ। I hope you understood the solution. All the best.